Hello students, welcome to the YouTube channel of Government Lohia College Churu. I am Dr. Sunita Meena, Assistant Professor English. Today we are going to discuss a poem At the Back of Progress by Taslima Nasreen. This poem is included in your BA Finals first paper Poetry and Drama. Taslima Nasreen was born on 25th August 1962. She is a Bangladeshi Swedish writer, physician, feminist, secular humanist and human rights activist. She is known for her writing on women's oppression and criticism of religion despite फोर्स्ड एग्जाइल. उन्होंने वुमेंस ऑपरेशन पे, विक्टिमाइजेशन पे और जो रिलीजन है, इस्लाम धर्म है, उसके ऊपर उन्होंने अपनी राइटिंग्स लिखी हैं. हर फादर वाज अ फिजिशियन. उनके फादर भी एक डॉक्टर हुआ करते थे. नसरीन स्टडीड मेडिसिन एंड बिकेम अ फिजिशियन. उन्होंने भी मेडिसिन पढ़ी और फिजिशियन बनी, एक डॉक्टर बनी वो. शी गेन ग्लोबल अटेंशन बाय द बिगनिंग ऑफ 1990s ओविंग टू हर एसेज एंड नॉवेल्स विद फेमिनिस्ट व्यूज and criticism of what she characterizes as all misogynistic religions including Islam. After high school in 1976 and higher secondary studies in college in 1978, she studied medicine at the Mymensingh Medical College. Mymensingh Medical College से उन्होंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई जो है MBBS जो अपनी कंप्लीट की थी. अर्ली इन हर लिटरेरी करियर नसरीन रॉट मेनली पोइट्री. अर्ली जो करियर था उनका उसमें केवल उन्होंने पोइट्रीज लिखी एंड पब्लिश्ड half a dozen collections of poetry between 1982 and 1993. 1982 और 1993 के बीच का जो पीरियड था उसमें उन्होंने हाफ डजन के लगभग जो पोएम्स है वो पब्लिश करी, often with female oppression as a theme. At the back of the in this poem, in the present poem, the central theme of the poem is women's oppression and women's victimization. After fleeing Bangladesh in 1994, बांग्लादेश से निकाल दिए जाने के बाद में नसरीन spent the next 10 years in exile in Sweden, जर्मनी, फ्रांस एंड द यूएस. उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज में अपना टाइम बिताया. 10 साल उन्होंने लगभग स्वीडन में, जर्मनी में, फ्रांस में, यूएस में अपने स्पेंड किए. इन 2004 में शी वॉज ग्रांटेड अ रिन्यूएबल टेम्परेरी रेजिडेंशियल परमिट बाय इंडिया एंड मूव टू कोलकाता. और 2004 में वो कोलकाता में आ गई क्योंकि इंडिया ने उन्होंने टेम्परेरी परमिशन दे दी थी यहाँ रहने के लिए. नसरीन स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री व्हेन शी वाज 13. शी वाज बस जस्ट 13 ईयर की उम्र में उन्होंने पोइट्रीज लिखना स्टार्ट कर दिया था. शी पब्लिश्ड हर फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स इन 1986. अपना फर्स्ट कलेक्शन उन्होंने 1986 में पब्लिश करवाया. हर सेकेंड कलेक्शन निर्बस्तियो बाहिरे ऑन्टोरे बैनिश्ड विद इन एंड विदाउट, वो जो है 1989 में पब्लिश हुआ. नाउ कम टू द टेक्स्ट ऑफ द पोएम एट द बैक ऑफ द प्रोग्रेस. द टाइटल ऑफ द पोएम एट द बैक ऑफ प्रोग्रेस presents a dual standard of our present patriarchal society. Taslima Nasreen gives examples of different persons who is morally degraded. The fellow who sits in the air-conditioned office is the one who in his youth raped a dozen or so young girls and at cocktail parties is secretly stricken with lust, fastening his eyes on lovely's belly buttons. Here Taslima Nasreen talks about a fellow, a high-ranked boss who sits in the air-conditioned office and in his youth he raped a dozen or so young girls. In his youth he is a morally degraded person and at cocktail parties he is secretly stricken with lust. He satisfies his lust in these parties and stares at beautiful body parts of young women. इस जो हाई रैंक बॉस है इसकी नज़रें ब्यूटीफुल वुमेन्स पे रहती हैं. ये एकदम से मोरली डीजनरेटेड पर्सन है, मोरली डिग्रेडेड पर्सन है.
In five-star hotels, he tries out his different sexual taste with a variety of women. He has a relationship with several women. He has illegal relationship with several women. In five-star hotels, he satisfies his lust with these women and returns home and behaves rudely with his wife. अपनी वाइफ के साथ में बहुत ही rudely behave करता है. Beats her because of an over ironed हैंकरचीफ और शर्ट कॉलर. बिल्कुल ट्रिवियल मैटर्स के ऊपर उससे लड़ाई करता है, उसको उसके साथ मारपीट करता है कि उसने जो हैंकरचीफ है उसको ज़्यादा आयरन कर दिया, शर्ट कॉलर को ज़्यादा आयरन कर दिया. तो ऐसे ट्रिवियल मैटर्स को लेकर के अपनी वाइफ को वो बीट करता है. इन द नेक्स्ट स्टेंजा, तस्लीमा नसरीन talks about another Mr. Big who is also morally degraded person. In his office, Mr. Big puffs on a cigarette, shuffles through files, rings for his employee, shouts, demands tea, drinks and returns to writing people's character references. अपने ऑफिस में मिस्टर बिग सिगरेट के गश लगाता है, ऑफिस के अंदर बैठ करके सिगरेट पीता है, शफल्स थ्रू फाइल्स को उलट पलट करके देखता है, रिंग्स फॉर हिज एम्प्लॉय, अपने एम्प्लॉयज को रिंग करके बुलाता है, शाउट्स चिल्लाता है उन पे, डिमांड्स टी चाय मंगवाता है, ड्रिंक्स अल्कोहल जो है शराब पीता है वहाँ पे, एंड रिटर्न्स टू राइटिंग पीपल्स कैरेक्टर रेफरेंसेस. और फिर अपने काम पर लौटता है. उसका काम क्या है? लोगों के कैरेक्टर रेफरेंसेस लिखना, जो खुद ही मॉरली डिग्रेडेड है. मिस्टर बिग खुद ही सिगरेट पीता है, शराब पीता है, ऑफिस में जोर जोर से चिल्लाता है, रूडली बिहेव करता है अपने एम्प्लॉयज के साथ में, लेकिन फिर भी उसको काम क्या दे रखा है? दूसरों के कैरेक्टर रेफरेंसेस लिखना. तो ये विडंबना है हमारे समाज की, जो कि तस्लीमा नसरीन ने यहाँ पे प्रेजेंट किया है हमारे सामने. Next stanza, she talks about another person. His employee speaks in such a low voice that no one would ever suspect how at home he also raises his voice. बॉस के सामने जो एम्प्लॉयज हैं वो बहुत ही लो वॉइस में बात करते हैं, बहुत ही नीची आवाज में बोलते हैं. उन्हें नहीं पता है, उन्हें बिल्कुल भी आभास भी नहीं है कि किस प्रकार से ये जो बॉस है वो अपनी फैमिली के साथ में रूडली बिहेव करता है. हाउ एट होम he also raises his voice is wild to his family, but with his buddies on the porch or at a movie indulges in loud harangues on politics, art, literature and how some female, his mother, grandmother or great grandmother committed suicide. ये जो बॉस है ये अपनी फैमिली के साथ में रूडली बिहेव करता है, अपनी वाइफ को पीटता है, लेकिन जब अपने फ्रेंड्स के साथ में, बडीज में फ्रेंड्स के साथ में पोर्च पे खड़ा होता है या मूवी देखने जाता है तो उनके साथ में बड़े बड़े मैटर्स के ऊपर डिस्कस करता है, जैसे पॉलिटिक्स है, आर्ट है, लिटरेचर है और अदर टॉपिक्स हैं कि जैसे किसी की मदर ने कैसे सुसाइड किया. तो ये सब जो टॉपिक्स है इनके ऊपर वो डिस्कशन करता है अपने फ्रेंड्स के साथ में. लाउड हैरिंग्स मतलब आर्ग्यूमेंट्स करता है. Bidding goodbye to his buddies, he returns home, beats his wife over a bar of soap or the baby's pneumonia. लेकिन bidding goodbye to his buddies, अपने फ्रेंड्स को गुड बाय करने के बाद में ये जो व्यक्ति है ये बड़ी बड़ी बातें करता है, पॉलिटिक्स के ऊपर, लिटरेचर के ऊपर, आर्ट के ऊपर बड़े बड़े डिस्कशन करता है. अपने घर आकर के क्या करता है? ऑन ट्रिवियल मैटर्स ही बीट्स हिज वाइफ. तुच्छ सी बातों पे, बिल्कुल छोटी छोटी बातों पे, लाइक ओवर अ बार ऑफ सोप और बेबीज निमोनिया, ये अपनी वाइफ को बीट करता है, उसे टॉर्चर करता है. इन द लास्ट एंड concluding stanza, Taslima Nasreen presents another example of such a morally degraded person. Next day at work, he pleasantly brings the tea, keeps the lighter in his pocket,
receives a tip of a couple of taka and tells no one that he divorced his first wife for her sterility, his second for giving birth to a daughter, his third for not bringing a sufficient dowry. Now with wife number 4 he again has someone to beat over a green chili or a handful of rice. अगले दिन वो ऑफिस में बैठा हुआ है बॉस, और चाय मंगवाता है, पॉकेट से लाइटर निकालता है, उसे टिप भी मिलती है, पैसे भी मिलते हैं, कपल ऑफ टाका मीन्स मनी भी मिलती है, लेकिन वो बहुत ही मतलब जेंटलमैन की तरह वहाँ पे बैठा रहता है, बिहेव करता है अपने फ्रेंड्स से, अपने एम्प्लॉयज से, लेकिन किसी को नहीं पता होता है, किसी को नहीं बताता है कि उसने अपनी पहली पत्नी को डाइवोर्स दे दिया क्योंकि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी. टेल्स नो वन दैट ही डाइवोर्स्ड हिज फर्स्ट वाइफ फॉर हर स्टेरिलिटी, और उसने अपनी सेकंड जो वाइफ थी उसे डाइवोर्स दे दिया क्योंकि उसने एक बेटी को जन्म दिया. हिज सेकंड वाइफ फॉर गिविंग बर्थ टू अ डॉटर, हिज थर्ड फॉर नॉट ब्रिंगिंग अ सफिशिएंट डॉरी. थर्ड जो वाइफ है उसको भी डाइवोर्स दे दिया क्योंकि वो सफिशिएंट डॉरी उसके लिए नहीं लेकर के आई. नाउ विद वाइफ नंबर 4, अब वो वाइफ नंबर 4 चौथी वाइफ के साथ में रहता है. ही अगेन हैज समवन, अब भी उसके सामने कोई ना कोई है जिसे वो ट्रिवियल मैटर्स के ऊपर, जिससे वो लड़ सकता है, जिसे बीट कर सकता है, जिसे टॉर्चर कर सकता है. ही अगेन हैज समवन टू बीट ओवर अ ग्रीन चिली और अ हैंडफुल ऑफ राइस. जो छोटी छोटी बातें हैं, ग्रीन चिली, हैंडफुल ऑफ राइस, इसके ऊपर, इन मैटर्स को लेके जिसे वो बीट कर सकता है. मतलब अपने आप को ऑफिस के अंदर वो एक जेंटलमैन की तरह प्रेजेंट करता है, और घर के ऊपर वो इतना मोरली डिग्रेडेड है और इतना रूडली अपनी वाइफ से बिहेव करता है. तो यहाँ पे जो हमारे प्रेजेंट सोसाइटी है, प्रेजेंट पैट्रियार्चल सोसाइटी है, पुरुष प्रधान समाज है, उसके असली चेहरा तस्लीमा नसरीन ने प्रेजेंट किया है. पोएम बहुत ही सिंपल और इजी है, आप इसका खुद ही इंटरप्रिटेशन कर सकते हो, अपना खुद का इंटरप्रिटेशन लिखें और इसको समझने का प्रयास करें. थैंक्स अ लॉट.